Ajit, sorry. Um, Misbah bhai, just wanted to ask you about Yasir Shah's form. I mean, did you feel that he was a bit rusty today? You felt, or there's a bit of lack of match practice, or how did you assess his form today? Yeah, I think obviously if you're playing after a long time, test match cricket, there is definitely pressure and rustiness, but hopefully he got a crucial wicket today, and the way he was bowling, even in the practice matches, uh, I think he has a big role to play in this game. And as the game progresses, I think he will get better, and he will be a crucial bowler in this game. Yes, Dean, you can ask a question, please. Yeah, hi, Ms. Barr. Can you just talk us through, from your perspective, what it was like to watch that opening burst from your pace bowlers? A lot has been said about the quality of your pace attack, but to see them reduce England to 12 for 3 must have been as thrilling for you as it was for us watching it. Yeah, really pleased by their performance, and I think they put the ball in the right areas. Everybody knows their potential. Abbas had a very good repute now at international level. I mean, he's the one who got very good control and can move the ball off the seam both ways. So uh, live up to the expectations today, and obviously Shaheen is our standout bowler the last 2-3 months, and again he bowled very well. So happy. Obviously, it's crucial for you to take wickets with the new ball, especially when the game is like, I mean, you are playing with only uh, you had just 300 or 320 runs on the board. It could go either way. So it's important for you to take early wickets, and I think they provided us with that advantage with the new ball. Thank you. Yes, Julian, please. Misbah, can I just ask you about Shan Masood's innings? He struggled when he was here in 2016, but played superbly today. How do you assess his performance? Yeah, I think excellent performance by him, especially against the seam attack. The way Broad, Anderson, Vokes, they were bowling, and Jofra Archer, I think, and obviously against an off spinner who was bowling well on a pitch where there was turn. I think good application and his hard work paid off. He's a hard working guy, fit, very committed, and I think that really showed in this inning that the way he's progressing from the last couple of series, scored runs in South Africa, got confidence, then in Australia was good, and then coming back in Pakistan, scored runs, and now he proved himself here in England. So really pleased, especially not 100, a big 100. I mean, still we would have been in trouble. I mean, if you score only 100, but 150 plus, and just playing through the inning, that was something special. Thank you. Yes, Daniel. Hi, Misbah. Misbah, do you feel vindicated by the decision to play Shadab, given that partnership he struck up with Shan? Or is that early to say because he hasn't bowled yet? I think for a long time we were just struggling to find a right combination for our team, because wherever we play 6 batsmen, then we are a bowler short. And obviously we're looking for an all-rounder, and looking at Shadab, especially in these conditions where we thought that there might be a little bit more help to the spinners. So the way he was batting also in the practice games, and he got 350s, already got 350s in test matches, especially in England. He played really well. And at number 6, who wanted to play Rizwan, and at number 7, I mean, you need a batsman like that who could go and play freely and put pressure on a position score, who could score quickly. And that was the reason behind that. And also we know that he's a very good cricketer. He's a very good fielder also. As a package, I think
these conditions also played a huge role to pick Shadab, and obviously getting he just gives us a lot of balance in our squad, our team once he's there at number 7. Thank you. Now we'll Qadir Khwaja, then Bakri. जी मिसबा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ये है कि जैसे आज जो है वो बैटिंग हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, शान मसूद ने जो है वो बाबर आजम की सेंचुरी कभी पूरी की, तो क्या आप सेटिस्फाई हैं या कोई फ्लॉज आपको नजर आए हैं बैटिंग में, और खासतौर पर जो बॉलिंग हमारी हुई है अब्बास शाहीन और खासतौर पर जो यासिर शाह ने विकेट्स लिए हैं इनिशियल स्टेजेस पर, तो कितना मुतमईन है आप इनकी परफॉर्मेंस से? आई थिंक खुशी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, बट मेरे ख्याल में देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, स्पेशली थोड़ा मेरे ख्याल में बाबर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बट आई थिंक अगर वो थोड़ा और लंबा खेल जाता तो दैट कुड हैव बीन वी कुड हैव बीन इवन फार बेटर पोजीशन। इसी तरह शादाब की विकेट जो गलत टाइम पे गिर गई, आई थिंक उस टाइम पे हमारे पास चांस था, मे बी हम 400 से ऊपर रन्स कर जाते। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट ओवरऑल आई थिंक शान ने कमी पूरी की है, और शादाब की और शान की जो पार्टनरशिप थी, फिर बाबर की पार्टनरशिप शान के साथ उस स्टेज पे बड़ी क्रूशियल थी। डिफिकल्ट टाइम, वेदर जिस तरीके से था, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस, और फिर बॉलिंग की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्योंकि अर्ली विकेट्स के बगैर बड़ा मुश्किल होता है इस सिचुएशन में आना, बट स्टिल आई थिंक लॉन्ग वे टू गो। कल हमारे लिए बड़ा क्रूशियल फर्स्ट सेशन भी होगा, दिन भी, और अगर हमने एडवांटेज लेना है इस मैच में तो मेरे ख्याल में वो पहला सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जी बाकरी। मिसबा, आप खुद पाकिस्तानी टीम के तवील अरसा कप्तान रहे हैं और आपने खुद टेस्ट में बहुत इनिंग्स खेली हैं। जब एक टेस्ट कप्तान मुसलसल नाकाम हो रहा हो तो टीम पे क्या नेगेटिव असर पड़ता है? मेरा इशारा अजहर की तरफ है कि वो एक अरसे से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद कप्तान रहे हैं और जब कप्तान कुछ ना कर रहा हो तो कितना प्रेशर फील होता है, और अजहर पे कुछ प्रेशर है आपको लगता है? देखिए, कप्तानी में प्रेशर हर प्लेयर पे होता है, कप्तान पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है। ऑब्वियसली अपनी परफॉर्मेंस भी होती है, टीम की भी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन प्रीवियसली मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा 100 करके आया वो श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसके बाद उसकी 2 इनिंग्स हुई हैं, तो मेरे ख्याल में 100 किया उसने अभी प्रैक्टिस मैच में। इज इन गुड निक, कोई ऐसी बात नहीं है। होपफुली इंशाल्लाह जितने भी बैट्समैन बाकी इवन मिस आउट कर गया आबिद अली, इसमें इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, डिफिकल्ट हैं, टॉप 3-4 बैट्समैनों के लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, और हर इनिंग में हर बंदा स्कोर नहीं करेगा, बट पॉजिटिव है इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह इनका भी रोल होगा, और ये लोग भी, स्पेशली अजहर भी आगे, बड़ी उम्मीद है कि ये इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेलेगा। जी रशीद शकूर, then Sohail Imran and then Shoaib Jet, please. अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, हमने जो माजी में देखा कि जो हमारा बॉलिंग स्पिन कॉम्बिनेशन होता था वो ऑफ स्पिनर सईद अजमल, फिर अब्दुल रहमान, उसके बाद फिर जुल्फकार बाबर आए, तो अब हम एक ही अंदाज के 2 लेग स्पिनर खिला रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि मतलब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और फिर शादाब की जो अपनी बैटिंग क्वालिटी या फील्डिंग है, तो आपको लगता नहीं है कि एक ही अंदाज के मतलब 2 लेग स्पिनर एक साथ अगर खेल रहे हो तो वो उनका इम्पैक्ट मतलब इतना मौसर हो सकता है आपके ख्याल में? देखें, आइडियली तो आप ये चाहते हैं कि आपके पास डिफरेंट बॉलर्स हो। अगर आपके पास एक लेग ही है तो दूसरे को फिंगर स्पिनर हो, बट समटाइम्स जो अवेलेबिलिटी है आपको टीम के बैलेंस के लिए आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है। तो आई थिंक शादाब को थोड़ा सा एक उसकी ऑलराउंडर एज एन ऑलराउंडर जो उसकी एबिलिटी है, स्पेशली इन कंडीशंस, उसकी बैटिंग की एबिलिटी भी, और फिर जो थोड़ा सा उसका डिफरेंस है यासर से, वो ये है कि गुगली उसकी अच्छी है, और यहाँ पे जब रफ से अगर गेंद ब्रेक होता है तो राइट हैंडर्स के लिए वो ज्यादा हैंडी हो सकता है, स्पेशली 3rd और 4th इनिंग में जब रफ बन जाते हैं। तो यासिर विकेट टू विकेट वाला बॉलर है, लेफ्ट हैंडर्स को रफ से बॉल करता है, राइट हैंडर्स पे
समटाइम्स अगर विकेट से बीच में से आपको हेल्प नहीं मिल रही तो उतनी इफेक्टिवनेस नहीं होती, तो वहां पे शादाब का रोल प्ले कर सकता है। और इसी तरह लेफ्ट हैंडर्स पे भी जाहिर है गुगली उसकी इफेक्टिव है। तो जो एक फिफ्थ बॉलर का रोल एज एन अटैकिंग रोल, के जब भी आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए हो तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, स्पेशली ऐसी पिच पे जहां पे बॉल स्पिन हो रहा है, और फिर साथ बैटिंग की एडेड आपके पास एडवांटेज है, जिस तरह आज उसकी बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप थी। जी सोहेल इमरान, देन शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह, मैं जी, पूछना वालेकुम। चाहूंगा, दो रोज हो गए हैं पिच को, आप देखा भी है जिस तरह कि वो बिहेव कर रही है, और क्योंकि कल तो ज्यादा ओवर्स नहीं हुए थे, आज मुकम्मल डे हुआ, तो पिच को आगे कैसे देख रहे हैं कि कितना डिटीरिएट करेगी? कि आपके दोनों जो स्पिनर्स हैं वो उसके ऊपर ज्यादा उनको तंग कर सकेंगे अगली तीसरी और चौथी इनिंग्स में? किस तरह का बिहेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पेस से? क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने देखा कि वियर एंड टियर भी होता रहा और खासी मुश्किल पेश आई बैट्समैनों को जो ही गेम आगे बढ़ती गई। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में पिच तो अभी से फर्स्ट डे से इवन स्पिन हो रहा था, और आज तो देखा होगा आपने कि इवन ऑफ स्पिनर, उनके जो ऑफ स्पिनर बॉल कर रहे थे उस वक्त भी अच्छा खासा टर्न और बाउंस मिल रहा था, और फिर यासिर ने बॉलिंग की, तो नेचुरल वेरिएशन बहुत है पिच पे, कोई बॉल सीधा रह जाता है, कोई बॉल लंबा ब्रेक हुआ है, और इसी वजह से थोड़ा यासिर पे उन्होंने अटैक भी किया है, क्योंकि मुश्किल था उसको बिल्कुल आप मतलब डिफेंसिवली खेलना, तो इस वजह से वो अटैक भी कर रहे हैं, तो चांसेस हैं, क्रिएट हो रहे हैं चांसेस, और इस पिच पे चांसेस क्रिएट हो गए। इवन सीमर का बॉल भी यहाँ पे जू पिच ड्राई होता है, ऑकवर्ड बाउंस भी होता है, ऑफ द सीम भी साइडवेज लेटरल मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो आई थिंक और मेरे अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है और पिछले मैच में के पिच डिफिकल्ट होगा बैटिंग के लिए जो टाइम आगे चलेगा। जी शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह, आपने दो फैसले किए, वैसे तो बहुत सारे किए, लेकिन दोनों बड़े फ्रूटफुल हुए कि मोहम्मद अब्बास के साथ आप गए, उन्होंने भी आज अपने आप को प्रूव कर दिया, शान जो है इंग्लैंड में उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं कि पाकिस्तान इनिंग की डिफीट इंग्लैंड को दे सकता है? फॉलो ऑन करवाने की पोजीशन में क्या हम हैं? और साथ ही एक तस्वीर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है कि सरफराज अहमद आए तो उनके हाथ में पानी भी था और जूते भी थे, तो लोग बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि साबिक कप्तान जो है उसको जो है ना जूते दे के भिजवा दिया गया। तो अमूमन ये तो होता है क्रिकेट में कि खिलाड़ी आते हैं, तो इसको दोनों पे जवाब दे दीजिए काइंडली। देखिए, नंबर वन तो ये जो बात है ना, ये तो बिल्कुल ही मतलब है कि ऐसी बात है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। मुझे अपना याद है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान था, मैं बाहर बैठा था और मैं एज ए 12th मैन अंदर जा रहा था, तो मेरे ख्याल में इसमें ना कोई शर्म होनी चाहिए और ना, सरफराज बहुत जबरदस्त इंसान भी है, लड़का भी है, प्लेयर भी है, और यू नो इसके इट्स अ टीम गेम। जब आपके 3-4 लड़के बाहर हैं और आपके एक्स्ट्रा प्लेयरों ने बारी बारी जाके प्रैक्टिस करनी है उस स्लॉट में, तो जो बंदा अवेलेबल है उसने हेल्प आउट करनी है अपने प्लेयर्स की। So I think it's not a matter of disrespect. It's I think huge respect for him also, कि उसको कोई इसमें वो नहीं है, किसी को भी नहीं है। It's a जिसको कहते हैं ना कि अच्छी टीम की ये निशानी है। और जहाँ तक आप मैच की बात कर रहे हैं और फॉलो ऑन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे आपने देखा होगा इन कंडीशंस में जहाँ पिच डिटीरिएट होती है और अभी बहुत टाइम होता है, वहां आप कोशिश यही करते हैं कि अपोजिशन को मैच से बाहर करें, और अगर आपके पास इवन फॉलो ऑन का चांस हो भी तो आप आखिरी इनिंग उनको खिलाएं। तो अभी तो खैर अभी तो मेन प्लेयर खेल रहे हैं, उनके सेट खेल रहे हैं दोनों, ये बड़े डेंजरस प्लेयर हैं, और फिर इंग्लैंड की जो टेल है, बीच राउंडर्स है, वो भी अच्छे बैट्समैन। अभी फिलहाल तो हमारे लिए इनको आउट करना है, हमने किसी अच्छी पोजीशन में आना है और अच्छी लीड लेनी है। इतना ज्यादा हमें आगे नहीं सोचना, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि मैच हमारे हाथ में आ गया या कुछ। आई थिंक स्टिल हमें बहुत मेहनत करनी है इस मैच में, और फिर देखना है कि कहाँ आउट करते हैं और आगे क्या करते हैं। जी क्विकली लास्ट क्वेश्चन, हाफिज शहबाज प्लीज। थैंक यू सर।
अस्सलाम वालेकुम मिसबा, अगर इस मैच को हम अब तक देखें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान की ग्रिप खासी मजबूत है, लेकिन क्योंकि टेस्ट मैच है, एक भी सेशन में थोड़ा सा अगर रिलैक्स हो तो टेस्ट मैच पूरे का पूरे मैच का नक्शा चेंज हो जाता है। तो कल जब फर्स्ट सेशन के लिए अंदर आएंगे तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये बज़ाहिर उनका लास्ट फुल बैटिंग पेयर खेल रहा है, उसके बाद नीचे ऑलराउंडर्स हैं, तो किस तरह इसी तरह अटैक पे जाएंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे अपनी स्ट्रेटजी अब सुबह? देखिए, डिसिप्लिन से आपको बॉलिंग करनी होती है टेस्ट क्रिकेट में, और जाहिर है जब तक आप दूसरी टीम को आउट नहीं कर लेते, ना सिर्फ इस इनिंग में बल्कि आपने 10 विकेटें अगली इनिंग में भी लेनी। और फिर अभी आपको नहीं पता कि कैसे आप कोशिश तो करेंगे कि जितनी जल्दी आउट कर सकें और जितनी बड़ी लीड हमें मिल जाए फर्स्ट इनिंग में, बट यू नेवर नो। क्रिकेट है, उनके मेन प्लेयर हैं, बहुत फॉर्म में है, बहुत फॉर्म में है। लास्ट मैच में जॉस बटलर ने रन्स किए, और फिर स्टिल उनके पास जो नीचे हैं वो उनकी टेल या उनके जो 2 ऑलराउंडर है वो भी अच्छे बैट्समैन है, तो स्टिल मैच ओपन है। और ऑब्वियसली हमें कल बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, फर्स्ट सेशन, उसमें हमें ब्रेक थ्रूज लेने और कोशिश करना है कि इंग्लैंड को जल्दी आउट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।